ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਡਿਨਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਟਲ ਹਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਿਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਔਰ JD ਵੈਂਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਹਿਲਟਨ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 6 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। JD ਵੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਹਿਲਟਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪਹੁੰਚੇ, JD ਵੈਂਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਪਸ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਆਖਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੋਟਲ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟੋਟਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ JD ਵੈਂਸ ਔਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੌਰਾਨੇ ਡਿਨਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 6 ਚੱਲਣ। ਬਲਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, JD ਵੈਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥ੍ਰੈਟਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਰਾਨ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਧਮਕੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਧਮਕੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ JD ਵੈਂਸ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਾਬੜਤੋੜ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਡੈਮੇਜ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਇਨੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਔਰ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਖੂਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ। ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਉਹ ਬਸਟ ਕਰਨਾ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, 6 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਬੈਕ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ FBI ਦੇ ਲਈ। ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। कई लेयर की यहाँ पर सुरक्षा घेरा तो होगा ही होगा और यही सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है क्योंकि देखिए व्हाइट हाउस वाशिंगटन कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन वही इस कार्यक्रम का आयोजन करती है। व्हाइट हाउस को जो कवर करते हैं पत्रकार वही यहाँ पर आते हैं, यानी अमूमन जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो एक दूसरे को जानते थे। व्हाइट हाउस को वो कवर करते आए हैं। उन पत्रकारों को की भी डिटेल्स जो है यहाँ पर व्हाइट हाउस के पास होगी। इसके अलावा जो हिल्टन होटल में जो कर्मचारी काम कर रहे होंगे उनकी डिटेल्स भी वॉशिंगटन या व्हाइट हाउस के पास होगी। तो ऐसे में सुरक्षा घेरे को तोड़कर किस तरीके से हमलावर यहां पर पहुंचता है, यह सबसे बड़ा सवाल है शैलेंद्र। और यह भी जानना बेहद जरूरी है कि उसका मकसद क्या था। क्या सिर्फ डराना था, दहशत फैलाना था या वाकई में ही अटैक करना था?
देखिए, ये शेड्यूल्ड प्रोग्राम रहता है जहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप साल में एक बार उन पत्रकारों से मिलते हैं जो कि व्हाइट हाउस कवर करते हैं, और एक बड़ी तादाद में जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद रहते हैं। हालांकि इस प्रोग्राम में ना सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप थे, बल्कि फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और जो प्रेस सेक्रेटरी लेविट है वो भी वहां पर मौजूद थी, और कैबिनेट के भी तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। तो ऐसे में उस होटल को निशाना बनाना जाना जहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप मौजूद है, अपने आप में बड़ा एक सवाल खड़े करता है। हालांकि वहां पर सुरक्षा पहले से मौजूद रहती है, तो ऐसे में सुरक्षा घेरे को तोड़कर किस तरह से एक या दो लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने हमले को अंजाम दिया है, उनके हथियार कौन से थे इस पर भी अब तक क्लैरिटी नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है जिस तरह से स्टॉर्म किया गया है सीक्रेट सर्विस की तरफ से, जो वहां पर एजेंट्स मौजूद रहते हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और उनकी मौजूदगी वहां पर थी, और तुरंत उन्होंने वहां से इवैक्यूएट किया प्रेसिडेंट ट्रंप को। लेकिन सवाल वही खड़े होते हैं कि आखिर ये दोनों हमलावर कौन थे, इन्होंने किसको निशाना बनाने के लिए इस तरह से वहां पर हमले को अंजाम देने की कोशिश की। हालांकि उसको विफल कर दिया गया, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप की सुरक्षा में वहां पर जिस तरह के इंतजाम रहते हैं, और इस होटल के आसपास भी सुरक्षा घेरा पहले से ही मौजूद था, तो उसको तोड़कर अंदर पहुंच पाना और कम से कम वहां पर पहुंचकर फायर करना, हालांकि इसमें अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं आ रही है। यह अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर वहां तक ये हमलावर पहुंचे कैसे, जहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप हिम्मत देखिए ना आप शैलेंद्र की, ओपन फायरिंग करता है, क्योंकि वहां पर जो चश्मदीद हैं, एक एएनआई की पत्रकार, इससे पहले हम उनकी बाइट भी सुनवा रहे थे दर्शकों को, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि एकाएक ही हमला हुआ, ओपन फायर हुआ और वो डर गए, वो टेबल के नीचे छुप गए। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट्स हैं उन्होंने वहां पर डोनाल्ड ट्रंप को इवैक्यूएट कर लिया, उसके बाद उन्होंने सुरक्षा घेरा वहां पर बनाया, और उसके बाद वो टेबल से जब उठी हैं तो उसके बाद उन्होंने देखा कि वहां पर अफरा तफरी का माहौल था। यानी कि बकायदा इस हमलावर को पता था, उसे पूरा प्रोटोकॉल पता था कि कब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, कैसे वो बातचीत करेंगे, कहां पर वो बैठेंगे, कैसे आगे का कार्यक्रम होगा। यानी कि उसे ये तो पता था कि प्रोटोकॉल के हिसाब से कब क्या होना है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें एक जो जानकारी जो पहले से मौजूद थी कि ये कार्यक्रम कब होगा, कहां होगा और किस समय होगा, ये जानकारी पहले से मौजूद थी, क्योंकि जब इनविटेशन जाता है तमाम पत्रकारों के पास में जो व्हाइट हाउस कवर करते हैं, तो उसमें जानकारी होती है कि ये होटल हिल्टन में होने वाला है जो कि वॉशिंगटन में है, और ये समय भी इसमें जानकारी दी जाती है, और ये भी बताया जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और फर्स्ट लेडी दोनों इसमें मौजूद रहेंगे। और डिटेल जरूर होगी शैलेंद्र, आपके पास मैं आऊंगी अगर आपके पास कोई भी अपडेट होगा। इस वक्त दीपक वोरा जी पूर्व राजनयिक के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक वोरा जी, इस अटैक को लेकर, इस हमले को लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या कहेंगे आप? टेरिबल, नहीं होना चाहिए। कुछ लोग हैं जो उसके हाथ धो के पीछे पड़े हैं, पहले भी उसके जीवन पर लोगों ने कोशिश की उसको मारने की। इसमें मैं समझा देता हूँ बेटा, मैं इसी होटल में गया हूँ, मैंने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी थी जब मैं वहां पोस्टेड था। मैं बताता हूँ कि एक तो सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, और जो पत्रकार होते हैं। दीपक वोरा जी, मैं आपको रोकूंगी यहाँ पर। देखिए, इस शूटर की पहली तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं। देखिए शूटर को किस तरीके से डिटेन किया गया है, ये पहली तस्वीर शूटर की यहाँ पर सामने आई है। देखिए अभी तक आधिकारिक पुष्टि, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बकायदा आधिकारिक पुष्टि यहां पर कर ली गई है कि हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है, वही तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जब शूटर को यहां पर डिटेन किया गया है। ये देखिए, ये पहली तस्वीर है शूटर की, जब शूटर को डिटेन किया गया है, उसे हिरासत में ले लिया गया है। अब ये शूटर कौन है, इसकी पहचान करना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर प्रोटोकॉल के हिसाब से सुरक्षा घेरे को यहां पर फांद करके ये हमलावर यहां पर मौजूद रहता है और उसके बाद हमला करता है, अपने आप में कई सवाल यहां पर खड़े कर रहे हैं। लेकिन न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको हमलावर की दिखा रहे हैं। देखिए उस वक्त जब सीक्रेट एजेंट्स जो है, जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स है, वो इस हमलावर को डिटेन करते हैं, उस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको न्यूज 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं। देखिए व्हाइट हाउस वॉशिंगटन कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन की तरफ से बकायदा हिल्टन होटल में यहां पर एक डिनर का आयोजन होता है। डोनाल्ड ट्रंप यहां पर मौजूद थे, फर्स्ट लेडी यहां पर मौजूद थी, जेडी वैंस यहां पर मौजूद थे। एकाएक यहां पर ऊपर फायरिंग होती है, 6 से 8 राउंड की फायरिंग हुई है, ये खबर मिल पा रही है। और उसके बाद जैसे ये हमलावर यहां पर हमला करता है, उसके बाद सुरक्षा घेरा आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के आसपास सीक्रेट सर्विस जो उनके सुरक्षा कर्मी मौजूद है, वो डोनाल्ड ट्रंप को घेर लेते हैं, उन्हें इवैक्यूएट यहां से कर लिया गया। लेकिन ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस हमलावर की जब उसे डिटेन किया गया, यानी कि हिरासत में लिया गया। अब कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब यहां पर तलाशने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इसका मकसद क्या था। क्या वाकई में ही ये डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करना चाहता था, उन पर अटैक करना चाहता था, या इसका टारगेट कोई और था, या दहशत फैलाना चाहता था? दीपक वोरा जी, मैंने आपको रोका, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, आप क्या बता रहे थे? और पहली तस्वीर भी यहां पर हमलावर की आ गई है। जी,
जो मैं आपसे कहना चाहता था बेटा, मैंने ये देखी हैं, ये जो प्रेस डिनर्स होते हैं व्हाइट हाउस प्रेस कोर के, इन लोगों के पास आईडी कार्ड्स होते हैं, नॉर्मली चेक करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, हमारे देश में भी होता है, सब जगह होता है, बहुत वेल नोन हो तो उसको नॉर्मली इतना सख्त सिक्योरिटी नहीं करते। दूसरी चीज, जो वेटर्स वहां पर होते हैं उसमें से भी कई सीक्रेट सर्विस के होते हैं, ताकि वो भी सब तरफ नजर रखते हैं। अब ये क्योंकि ईरान की समस्या इस समय चल रही है, तो बहुत सारे कैबिनेट मेंबर्स भी मौजूद थे। अगर ट्रम्प साहब चाहते किसी से पूछना, या प्रेस कोर्ट चाहती है कि भाई डिफेंस सेक्रेटरी आप कुछ बताओ, भाई आप कुछ बताओ, होम सेक्रेटरी हैं ये या वो, आप कुछ बताओ, तो ये सब वहां पर मौजूद होते। नॉर्मली नहीं होता, लेकिन क्योंकि स्थिति इस समय स्पेशल है तो इन सबको बुलाया गया था। मेरा अपना मानना है बेटा, अभी स्पेकुलेशन नहीं करूंगा, लेकिन ये अटेम्प्ट क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी पर था, पहले हो चुके हैं। और आई जस्ट होप कि इसका एक विशेष धर्म से ना संबंध हो। ये जो व्यक्ति है जिसने ये कोशिश की थी, आपने देखा है उसको, उसके ऊपर का कपड़े उतार लिए हैं, उसके जमीन पर पटक दिया सर, है। अभी बहुत जल्दबाजी होगी, हमलावर की पहचान होना बाकी है। क्या डिटेल्स वॉशिंगटन से या व्हाइट हाउस से आती हैं? नीरज ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि नीरज इस खबर पर नजर बनाए हुए। नीरज, और क्या आपको डिटेल्स अभी मिल पा रही है? हालांकि देखिए, आधे घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि वो प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, बाकायदा जानकारी देंगे। नीरज। मोनिका, बिल्कुल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पे इस हमले की पहली बार जानकारी दी। उन्होंने इसमें जरूर बताया कि एक हमलावर को, एक ही शूटर है। उन्होंने जो अपने पोस्ट में जिक्र किया है कि उसे गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है। और जो जानकारी व्हाइट हाउस और अमेरिका से सामने आ रही है वो ये कि ट्रंप इस पूरे मामले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि जो इस एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं, वो भी, उन्होंने भी वहां होटल के अंदर ही मीडिया के लोगों को उसी मंच पर संबोधित किया और कुछ जानकारियां सामने दी। लेकिन जो जानकारी सबसे महत्वपूर्ण सामने अब तक आई है वो ये कि ट्रंप अब से थोड़ी देर के बाद इस पूरी वारदात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पहचान हो चुकी है हमलावर की। एक बार मैं दर्शकों को बता दूं, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज लगातार चल रही है। शूटर 31 साल का कॉल थॉमस एलन है। ये पहचान हो चुकी है, कैलिफोर्निया का रहने वाला है ये शूटर, कॉल थॉमस इसका नाम बताया जा रहा है। 31 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। नीरज, कोई आपके पास इंफॉर्मेशन? देखिए, जो जानकारी शूटर, जी जी जी, देखिए, कैलिफोर्निया का रहने वाला है, 31 साल की उम्र है। बैकग्राउंड क्या है उस बारे में जांच एजेंसियां जो हैं वो जानकारी जुटाने में लगी हुई है। लेकिन उससे जो, उसको एप्रीहेंड करने के बाद जो उसके डॉक्यूमेंट से या उससे बातचीत के बाद जो जानकारी सामने आई है वो वहां मीडिया के माध्यम से जानकारी अभी सामने आई है कि 31 साल का है, कैलिफोर्निया का रहने वाला है, उसका नाम सामने आया है। लेकिन पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वो अभी जुटाने में सीक्रेट सर्विस और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं वहां, वो जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद इस पूरी घटना पे ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद ही कहीं ना कहीं क्लैरिटी और होगी कि इसका बैकग्राउंड क्या है। शैलेंद्र, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन? क्योंकि पहचान हो चुकी है, 31 साल का ये शूटर है, कैलिफोर्निया का रहने वाला है। बैकग्राउंड को लेकर कोई आपके पास डिटेल्स हो, शैलेंद्र? देखिए, अब तक बैकग्राउंड को लेकर कोई तफसील सामने नहीं आई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जिस वक्त वहां पर कॉरेस्पोंडेंट्स मौजूद थे, उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति को वहां पर फायर आर्म के साथ देखा गया अप्रोच करते हुए हॉल को, जिसके बाद वहां पर 5 से 6 बार गोली चली है। यानी कि माना जा रहा है कि सीक्रेट सर्विसेज की तरफ से ये अटैक, उसको रोकने के लिए, इसकी तरफ किसी भी तरह के हमले को रोकने के लिए उस पर फायर किया गया, जिसमें उसकी मौत हो चुकी है। हालांकि उसकी आइडेंटिफिकेशन की जो तफ्तीश है, जो उसकी आइडेंटिटी है, उसको तलाशा जा रहा है, उसमें और डिटेल्स निकाली जा रही है, ताकि ये कम से कम क्लियर हो सके कि आखिर ये हमलावर था कौन और उसके पीछे मकसद क्या था। देखिए, सबसे जरूरी है कि अगर वो इस तरह के एक हाई प्रोफाइल इवेंट को अगर टारगेट कर रहा है तो एक बड़ा मकसद इसके पीछे जरूर होगा। तो वो मकसद क्या था? हालांकि इससे पहले 2024 में भी ऐसा ही एक हमला हुआ था, एक रूफटॉप के ऊपर से प्रेसिडेंट ट्रंप पर फायर किया गया था, जिसमें उनके गले में चोट लगी थी। उसमें हालांकि वो बच गए थे, लेकिन ऐसे में दूसरा बड़ा हमला है जहां पर एक बड़े इवेंट को टारगेट किया गया, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके साथ फर्स्ट लेडी मौजूद थी। लेकिन ऐसे में जो ये हमलावर है, बताया जा रहा है 31 साल का है, कैलिफोर्निया का रहने वाला है, और कैलिफोर्निया वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वो ट्रैवल करके वॉशिंगटन पहुंचा है, जिसके बाद उसने हमले को अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री को भी अब खंगालना होगा शैलेंद्र। यहाँ पर दीपक वोरा जी, जब इस तरीके से हाई प्रोफाइल इवेंट को टारगेट किया जाता है, जहां पर सुरक्षा घेरा जो है कई लेयर्स का होगा, तो आपको क्या समझ आता है, क्या टारगेट होगा, क्या मकसद होगा?
ऑब्वियसली मुझे लगता है सिक्योरिटी तो अमेरिका में बहुत रहती है, लेकिन फिर भी वहाँ के कई राष्ट्रपतियों पे हमले हुए हैं, जानलेवा हमले हुए हैं, कई तो मारे गए थे हमलों में। मैं वहाँ था जब डोनाल्ड रेगन पर भी हमला हुआ था, आई वाज पोस्टेड देयर। तो ये सिक्योरिटी जितनी मर्जी टाइट कर लो, लेकिन कोई ना कोई बहाना बना के ये लोग, रूस बना के, कोई भेस अपना बना के ये लोग अंदर घुस जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ ही सेकंड पहले पोस्ट किया, शायद आपने भी देखा होगा, कि इट हैज बीन क्वाइट एन इवनिंग, और डीसी सीक्रेट सर्विस और लॉ इन्फोर्समेंट में जबरदस्त काम किया है, बहुत जल्दी से काम किया है, बड़ी बहादुरी से काम किया है। और मैंने उनको एक ही चीज कही है, शो शुड गो ऑन, लेकिन हम आपकी बात मानेंगे। यानी मैं दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जैसा आप बता रही हैं, और फिर मैं बताऊंगा मुझे क्या जानकारी मिली है। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है हमले करो, मैं डरने वाला नहीं हूं। मैंने जो रास्ता चुना है, आई विल स्टे विद दैट। मुझे ये अब लग रहा है जो इन्होंने अभी लेटेस्ट पोस्ट किया। बिल्कुल, दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, एक बार फिर से डिटेल दे देते हैं कि आखिर होता क्या है। देखिए, यहाँ पर व्हाइट हाउस की तरफ से, जो व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन है, उनकी तरफ से एक डिनर का आयोजन होता है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर फर्स्ट लेडी के साथ, जेडी वैंस और तमाम जो व्हाइट हाउस के तमाम जो अधिकारी हैं वो इस डिनर में मौजूद रहते हैं। एक है कि यहाँ पर 31 साल का ये जो हमलावर है जिसे डिटेन किया गया है, न्यूज 18 इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसे डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है, कैलिफोर्निया का रहने वाला है, ये पहचान उसकी हो चुकी है, लेकिन मकसद क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, अभी तक की क्लैरिटी नहीं हुई है। जिसके बाद सीधे तौर पर इस पूरे होटल को फिलहाल इवैक्यूएट कर लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित है, बाकायदा उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, उनकी तरफ से यह भी ट्वीट किया गया है तमाम अधिकारी जो उनके साथ उस वक्त उस होटल में मौजूद थे वो सभी सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह भी सुनिश्चित किया गया है कि ठीक आधे घंटे के बाद उनकी तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग होगी, किन परिस्थितियों में और कैसे ये अटैक किया गया है, क्या मकसद रहा है इस हमलावर का, इसके बारे में जानकारी उनकी तरफ से दी जाएगी। और यह भी उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि ठीक 30 दिनों के बाद यही कार्यक्रम जो है एक बार फिर से किया जाएगा, यह सुनिश्चित डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। यानी कि फिलहाल नीरज होटल को खाली करवा दिया गया है, यानी कि जो ये कहा जा रहा था कि शायद कार्यक्रम फिर से शुरू हो सकता है, वो नहीं होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जानकारी दे दी है। नीरज, देखिए, 4-5 बातें महत्वपूर्ण है मोनिका, वो आपको बताना चाहिए। पहला, 8:30 बजे ये हमला होता है, फायरिंग होती है, उसके बाद ट्रंप को बाहर ले जाया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ट्रंप के अलावा जो व्हाइट हाउस से जुड़े लोग थे, कैबिनेट के कुलिक्स थे, जेडी वेंस थे, मेलानिया ट्रंप थी, उन सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमलावर था उसे एप्रीहेंड किया गया है, हिरासत में लिया गया है, और वो जो अभी एक खबर अमेरिका से आ रही है उसे अस्पताल में ले जाए गए। चौथी एक इंपॉर्टेंट जानकारी अभी सामने आई है कि सीक्रेट सर्विस के एक एजेंट को भी गोली लगी है, जो वहां की मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई है। चौथी महत्वपूर्ण बात है कि सीक्रेट सर्विस के एजेंट को भी गोली लगी है, वो हर्ट हुआ है, हालांकि जानलेवा नहीं है, उनकी हालत जो है खतरे से बाहर है, लेकिन वो भी हर्ट हुए, वहां की रिपोर्ट में सामने आई है। पांचवी महत्वपूर्ण बात यह कि हमलावर की पहचान की गई है, लेकिन अभी पृष्ठभूमि की जानकारी सामने आनी बाकी है। तो 5 ये महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। ट्रंप इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जो व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंस एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं, इस हमले के बाद होटल के बॉलरूम में जहां इस डिनर का आयोजन होना था, वहीं जो मीडिया कर्मी मौजूद थे उनको जानकारी दी कि इस पूरे मामले में डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के लोगों से बातचीत करेंगे। और आपको ये बताना चाहेंगे कि ये एसोसिएशन जो है एक स्वतंत्र एसोसिएशन है और हर साल इस डिनर का आयोजन करता है, और इसी में ट्रंप और जेडी वेंस और बाकी व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को बुलाया गया था। और ऐसा पहली बार हुआ है कि इस तरह का हमला या इस तरह की घटना सामने आई है जहां राष्ट्रपति मौजूद हो और कोई हमलावर हमला करता है, लेकिन उसका इंटेंशन क्या था, निशाने पर जरूर ट्रंप रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका इंटेंशन क्या था, उसका मकसद क्या था, मोटिव्स क्या था, वो जानकारी सामने आनी बाकी है।